Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, कम mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। Hello, good morning. In previous class, we were discussing about the seed development. In that lecture, we have already discussed about the structure of seed. Remaining part of that topic, we will discuss today. That is classification of seed. Before I start today's topic, classification of seed, we should revise some basic facts of previous lecture. We know seed is nothing, it is the modification of ovule which forms inside the fruit. Each seed is composed of three parts. Outer one is called seed coat, it is also called outer cover. Seed coat is formed by integument. Seed coat may be one layer or two layer, generally it is two layer. Outer layer is called testa and inner layer is called tegument. Second part is embryo. Embryo produces new plant or new offspring. Third part is reserve food. Reserve food may be endosperm or in the form of cotyledons. So these are the some basic facts of previous lecture. Now come to the today topic, classification of seed. Now come to the today topic, classification of seed. Seed is categorized into different categories or type on two bases. First one is on the basis of presence of endosperm. In the seed. Second base on the basis of presence of cotyledons or number of cotyledons. In the seed. These are the two bases on which seeds are categorized into different types. We will study one by one. First of all, we will study on the basis of presence of endosperm in the seed. On the basis of presence of endosperm in the seed, that means endosperm is present in the seed or not. On this basis, seed is categorized into two categories. First one is called endospermic seed. First one is called endospermic seed and second one is called non-endospermic seed. Endospermic seed means these seeds have endosperm. There remains of endosperm inside the seed. In non-endospermic seed, endosperm is not present because the endosperm is consumed during embryonic development. So, we can categorize seed on two categories, endospermic seed or non-endospermic seed. Endospermic seed
means endosperm is present there. Non-endospermic seed, endosperm is absent there. Endospermic seed is also called albuminous. Albuminous seed or non-endospermic seed is also called X-albuminous. X-albuminous seed. Some common examples of endospermic seed or non-endospermic seed. Example is there. Endospermic seed, maize, rice, wheat, coconut, etc. Non-endospermic seed, example, pea, gram, groundnut, sunflower, these are the examples of endospermic seed or non-endospermic seed. I repeat, देखिए सीड को हम दो आधार पर कई कैटेगरी में बांटते हैं। जो पहला आधार होता है कि सीड में इंडोस्पर्म, ऑलरेडी मैं इसकी चर्चा आपको कर चुका हूं कि सीड में इंडोस्पर्म उपस्थित है या नहीं। वैसा सीड जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसको हम इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। यहां पर यथा नाम तथा गुण, या नाम ये सीड का इंडोस्पर्मिक सीड, दैट मींस इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट देयर। It is also called albuminous seed. Example: maize, rice, wheat, coconuts. etc. उसी तरीके से वैसे सीड्स जिसमें कि एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता, उसका रिमेन्स उपस्थित नहीं होता, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, और इसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। और एग्जाम्पल में पी, ग्राम, ग्राउंडनट और सनफ्लावर हम लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला जो आधार बनाया है हम लोगों ने सीड को विभिन्न कैटेगरी में बांटने का, वो कि एंडोस्पर्म उपस्थित है कि नहीं। एक बात और याद रखना है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी का भी, तो कोई ना कोई आधार रखा जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, बाय द वे ये क्लासरूम है, बाय द वे ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी 100 स्टूडेंट इज देयर। और यदि हमको क्लासिफाई करना हो तो हमको कोई ना कोई, अब 100 स्टूडेंट्स है, और यदि हम क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बेस रखना होगा, कोई ना कोई आधार बनाना होगा, और जैसे ही हम आधार बदलेंगे आंसर भी बदल जाएगा। जैसे आप देखते हैं, बाय द वे 100 स्टूडेंट हैं, और इस 100 स्टूडेंट में बाय द वे 30 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज हैं। ठीक है, तो हमने एक बेस रखा कि इस क्लास में कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं, यानी जेंडर को अगर हमने बेस रखा तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं कि 70 बॉयज है और 30 गर्ल्स है। विदाउट बेस हम इस स्टूडेंट को क्लास में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये पहला आंसर हुआ। बाय द वे बेस हम रखते हैं, जेंडर के हिसाब से देखते हैं, तो हम क्लास को दो भाग में बांट सकते हैं कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। और बाय द वे अगर जैसे देखिए, जैसे ही बेस बदलेगा, जैसे ही आधार बदलेगा, पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऐसे समझ लें कि इसी क्लास में जो स्टूडेंट है, हम उनको कौन किस कलर का वस्त्र पहना है उस आधार पर बांटे। मान लीजिए कि 10 लोगों ने रेड कलर का पहना है, या 90 लोगों ने येलो कलर का पहना है। यानी यदि हम स्टूडेंट के वस्त्र के
बेसिस पे अगर क्लास को डिफाइड करें तो यही देखिए आंसर बदल जाएगा, एक तरफ 90 और एक तरफ 10। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, तो जैसे ही बेस बदलते हैं आंसर बदल जा सकता है। तो यहां भी मैं कह रहा हूं कि सीड को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का दो आधार रखा गया है। पहला आधार है कि इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म सीड में उपस्थित है कि नहीं। यदि सीड में इंडोस्पर्म उपस्थित है तो वैसे सीड को हम इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, और यदि अनुपस्थित है तो उसको हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। इसी को हम लोग एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं और इसको एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बेस को देखते हैं, दूसरे आधार को मान के देखते हैं कि सीड को कितने भाग में बांटा जा सकता है। हाँ, तो हम लोग यदि बेस बदल देते हैं, दूसरा बेस पे देखते हैं कि सीड में कॉटिलिडन उपस्थित है या नहीं, या फिर ये देखते हैं कि सीड में कितने कॉटिलिडन उपस्थित हैं। मैं कॉटिलिडन क्या है ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इनसाइड द सीड, सीड इज फर्दर categorized, या seed is categorized into two categories. First one is called dicotyledonous seed and second one is called monocotyledonous seed. डाइकोटिलेडनस सीड और मोनोकोटिलेडनस सीड, या इसी को हम लोग डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड भी करते हैं। ये डाइकोट जैसा यहां फिर भी देखिए यथा नाम तथा गुण, डाइकोटिलिडनस मतलब ये ऐसा सीड है जिसमें दो कॉटिलिडन उपस्थित है और ये ऐसा सीड है जिसमें एक कॉटिलिडन उपस्थित है। यानी नंबर के बेस पर किसी सीड में एक कॉटिलिडन उपस्थित है या दो कॉटिलिडन उपस्थित है, इस बेस पर हम सीड को दो भाग में बांट सकते हैं। एक को कहा कि डाइकोट या डाइकोटिलिडनस सीड, मतलब टू कॉटिलिडन्स इज प्रेजेंट देयर। यहां मोनोकोटिलिडन्स और मोनोकॉट मींस वन कॉटिलिडन्स इज प्रेजेंट देयर। ठीक, फिर इस डाइकोटिलिडनस सीड को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग में बांट सकते हैं। ये डाइकोटिलिडनस सीड को दो भाग में बांटने का आधार ये है कि ये डाइकोट है, ये भी दो तरीके का हो सकता है कि डाइकोट है और इसमें दूसरा पैरामीटर लगाते हैं कि इंडोस्पर्म उपस्थित है कि नहीं है, और या अगर डाइकोट है और उसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड, और यदि डाइकोट है और इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड। ठीक है, तो मैं यहां लिखा हूं दो भाग में बांटते, इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड, और इधर लिखते नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड। यानी डाइकोटिलिडनस सीड को प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पर्म मतलब इंडोस्पर्म उपस्थित है या नहीं, इस आधार पर पुनः दो भाग में बांटते हैं, एक इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड और दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड। मतलब इसमें इंडोस्पर्म ऐसा डाइकोट है, ऐसा डाइकोटिलिडनस सीड है जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है, और ये ऐसा डाइकोटिलिडनस सीड है जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं है। अब ऐसा सीड अभी मैं विस्तार से भी चर्चा करूंगा एक एक करके। यहाँ पे फिर से एक बार मैं अभी सिर्फ एग्जाम को लिख दे रहा हूं, जैसे कास्टर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर इंडोस्पर्म उपस्थित होता है। कास्टर आपने नाम सुना होगा रेडी का, और ये नन, अभी ये तो मोस्ट कॉमन है और सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। आप अभी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, पी है, ग्राम है,
ठीक है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, तो सब इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ग्राउंड नट। फिर उसी तरीके से मोनोकॉटिलिडनस सीड को भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक यहां भी मोनोकॉट, ऐसा मोनोकॉटिलिडनस सीड हो सकता है कि जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित हो सकता है, और ऐसा मोनोकॉटिलिडनस सीड हो सकता है जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसे भी दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं इंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडनस सीड, मोनोकॉटिलिडनस सीड, और नेक्स्ट वन इज नॉन इंडोस्पर्मिक, non-endospermic monocotyledonous सीड। मतलब ये ऐसा मोनोकॉट है, ऐसा सीड है जिसमें एक बीजपत्र है, एक कॉटिलीडन है, और इंडोस्पर्म, ये तो सबसे मोनोकॉटिलीडन है, और ये एक कॉटिलीडन है, और एक ये ऐसा है जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है, और ये ऐसा है जिसमें इंडोस्पर्म अनुपस्थित है। एग्जाम्पल में हम लोग याद रखेंगे इंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडनस में हम लोग याद रखेंगे, मैं इसको मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं, राइस को, और यहां ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड को। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉटिलीडन कितना है सीड के अंदर। यदि एक है तो उसको हम मोनोकॉटिलिडनस सीड कहेंगे, और यदि दो है तो उसको हम डाइकॉटिलिडनस सीड कहेंगे। फिर दूसरा पैरामीटर लगाएंगे कि इंडोस्पर्म उपस्थित है या नहीं है। यदि ऐसा डाइकॉट है जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है तो उसको हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक डाइकॉटिलिडनस सीड, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कास्टर का। दूसरा, यदि डाइकॉटिलिडनस है, दो कॉटिलीडन्स उपस्थित है, लेकिन उसमें इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकॉटिलिडनस सीड। एग्जांपल याद रखेंगे, पी, ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, etc। ये मोनोकॉटिलिडनस सीड कहा, only one cotyledon is present there. If endosperm is present in monocot seed, then that type of monocot seed is called endospermic monocotyledonous seed. Example is there, maize and rice. उसी तरीके से देखिए, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब यहां पे मोनोकॉट है, एक कॉटिलीडन उपस्थित है, और इसमें इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं है। एग्जांपल याद रखेंगे ऑर्किड। देखिए, आपके लिए यहां इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका इससे आंसर ना मिल सकेगा। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि सीड आपको 11th में भी पढ़ना था, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में, तो मैं आपको यहां पर ही इस तरीके से बता ही रहा हूं कि जो आपसे सीड से रिलेटेड जितने तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बन जाना चाहिए। तो मैं बारी बारी से थोड़ा इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड, फिर नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड, इन सब के बारे में बता रहा हूं। ओके, डाइकोटिलेडनस सीड का पहला टाइप जिसको हम इंडोस्पर्मिक तो डाइकोटिलेडनस सीड का जो पहला टाइप है इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, इंडोस्पर्मिक मींस इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। पहला पॉइंट नाम से ही क्लियर है, यहां पे इंडोस्पर्म उपस्थित है। दूसरी बात, डाइकोटिलेडनस सीड मींस टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट, टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट। तो बस नाम से ही इसकी परिभाषा, इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि इंडोस्पर्म उपस्थित है और दो कोटिलेडन उपस्थित है। अब मैंने एग्जांपल में आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कास्टर को याद रखना है। अब इस कास्टर को देखेंगे कि कैसे इसमें टू कोटिलेडन्स होते हैं और इंडोस्पर्म उपस्थित है। देखिए, हम आप सब
कास्टर देखे होंगे, रेडी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए लगभग ऐसा, लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहां पे ऐसे कवर रहता है, आपको ऐसे यहां ऐसे कवर रहता है। हमने पढ़ाया कि जो भी सीट होगा उसके सबसे बाहर में सीट कोट होगा, और यहां भी सीट कोट होता है। ऊपर से आप देखिएगा तो वो पैचेज होते हैं इसके ऊपर आउटर कवर पर, और यहां पे जो सीट कोट है इसका सीट को वो आउटर और इनर फ्यूज कर जाता है। ये आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको यहां हम कह रहे हैं कि ये सीट कोट होता है, ठीक है, ये सीट कोट है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे इस कास्टर के सीट को, तो देखिए कास्टर का सीट अगर बाई द वे यहां पे देखिए, यहां भ्रूण होता है, यहां पे मैं इसे भ्रूण बना रहा हूं, मान लीजिए ये भ्रूण है। और चूंकि देखिए कास्टर जब ऐसे रहेगा कास्टर का, तो ये भ्रूण ऐसे बाय द वे यहां, यदि हम लोगों ने ऐसे रखा तो ये सामने से भ्रूण दिखेगा, ऐसे कास्टर ऐसे रहता है। तो मैं फिगर को ऐसे नहीं बना करके ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको ये दोनों कॉटिलीडन दिखे, ठीक है, ऐसे। तो कास्टर को हम लोग ऐसे खोले ऐसे दिखता है, लेकिन ये मैं ऐसे फिगर बना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये कॉटिलीडन दिखे। देखिए इसमें जो कॉटिलीडन्स होता है, देखिए ये क्या है, तो ये है एम्ब्रियो। मैंने बताया था कि कोई भी सीड होगा तो पहला सीड कोट होना चाहिए, दूसरा एम्ब्रियो होना चाहिए। देखिए एम्ब्रियो इससे, फिर है तीसरा कि रिजर्व फूड मटेरियल होना चाहिए। और ये रिजर्व फूड मटेरियल किस रूप में हो सकता है, चाहे वो कॉटिलीडन्स के रूप में हो सकता है, या एंडोस्पर्म के रूप में हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं कि कैसे होता है। अभी मैंने कहा कि ये डाइकोटिलीडन्स है, यानी दो कॉटिलीडन्स उपस्थित है। देखिए अगर यहां हम ये इसका कॉटिलीडन्स, ये दो कॉटिलीडन्स होते हैं, यहां पे इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉटिलीडन्स, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट आ गया सीड का, ठीक है। और यहां पे कॉटिलीडन्स दो हो गया तो डाइकोटिलीडन्स है। फिर मैं कह रहा हूं एंडोस्पर्मिक है, तो वास्तव में इसके बीच ये सब ये एंडोस्पर्म, फैटी एंडोस्पर्म पाया जाता है, यहां पे ये एंडोस्पर्म पाया जाता है। यहां से एक मेन जो बेस, यहां पर और सब बात आपको याद हो तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम प्लीम्यूल कहेंगे। ये सब बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। नीचे वाला हिस्सा है इसको हम रेडिकल कहेंगे। ये जो बीच वाला है इसे हम कॉटिलिडनरी नोड कहेंगे। जो ये ऊपर वाला है इसको हम इपिकोटाइल कहेंगे। जो यहां है इसको हाइपोकोटाइल कहेंगे। ऑलरेडी ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है वो है इसका एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं, ये जो आउटग्रोथ, आप देखिएगा आगे जो आउटग्रोथ होता है इसको हम कहते हैं कारणकर। क्या नाम है? कारणकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन में कारणकर पूछा गया, ठीक है, कारणकर। तो ये स्पेशलाइजेशन है भाई, आपको कास्टर सीड में देखने को मिलेगा। अब यह कि कारणकर है क्या, तो वास्तव में ये थर्ड इंटेगमेंट है। क्या है? थर्ड इंटेगमेंट है। ये थर्ड इंटेगमेंट है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया है कि बस दो इंटेगमेंट होते हैं, आउटर वन और इनर वन। तो मैं कहा हूं बायोलॉजी में हमेशा एक कदम आगे और एक कदम पीछे चलते रहना पड़ता है। तो वास्तव में जैसे आप ओव्यूल का यह स्ट्रक्चर याद करें तो ओव्यूल कुछ इस तरीके से था। ओव्यूल ऐसा,
वो भी कुछ इस तरीके का था। और यही सीड कोट का निर्माण करता था, आउटर और इनर, बाहर वाला टेस्टा का निर्माण करता था, अंदर वाला टेगमेंट का निर्माण करता है। ये ऑलरेडी डिस्कस। मैं अब कह रहा हूं कि जो एक कास्टर के केस में क्या होता है कि ये तीसरा इंटेगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये तीसरा इंटेगमेंट पाया जाता है, ये तीसरा इंटेगमेंट पाया जाता है और यही इंटेगमेंट यहां पर कारणकल के रूप में उपस्थित होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, जब आप नीट वगैरह का एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई आगे आपसे पूछे कारणकल क्या है, तो ये थर्ड इंटेगमेंट है। मैं यहां आपको समझा रहा हूं, जनरली दो टेस्टा इंटेगमेंट और यही टेस्टा इंटेगमेंट मिल करके यहां बना दिया सीड कोट, और ये जो तीसरा इंटेगमेंट है ये हो गया कारणकल। तो यहां पर एक टर्म याद रखना है कास्टर के केस में, कारणकल, दैट इज द थर्ड इंटेगमेंट। ठीक है, ये सफिशिएंट है। यदि इतना टर्म आपको याद रहेगा तो सीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटेगा, मिस नहीं करेंगे आप। तो फिर से मैं कह रहा हूं, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट देयर, टू कोटिलिडन्स इज प्रेजेंट देयर, एग्जांपल इज कास्टर। बायोलॉजी में सिर्फ फिगर याद रखना है, तो ये फिगर आपको कॉपी में भी बना लेना है और नोटबुक में बना लेना है, और प्लस इसके साथ एक और फिगर मॉर्फोलॉजी पर जो पैचेज है वो भी दे रहा हूं, तो वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब मैं दूसरा पार्ट पे चलते हैं, दूसरा टाइप्स में। जो ये डाइकोटिलिडनस सीड का जो ये दूसरा टाइप है, इसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड। नाम से ही उसी तरीके से स्पष्ट है, नॉन एंडोस्पर्मिक मींस एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। यहां पे एंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता। कोई पूछेगा एंडोस्पर्म क्यों उपस्थित नहीं होता, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है डाइकोटिलिडनस सीड, मतलब टू कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। ये बहुत आसान है, सिर्फ टर्म आपको याद रखना है, बाकी बात ऐसे ही क्लियर। टू कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा ये डाइकोट में देखा जाता है और आपको सबको पता है इसके बारे में। पहले भी उदाहरण में मैंने कहा ही था कि सीड को समझना है तो ग्राम को समझिए, पूरी बात आपको समझ में आएगी। ये है पी है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड। तो यहां बस दो बात याद रखना है, क्या तो एंडोस्पर्म यहां पे नहीं पाया जाएगा, दूसरी बात यहां पे दो कोटिलिडन्स उपस्थित होंगे, इसीलिए इसको हम डाइकोटिलिडनस सीड कहते हैं या डाइकोट सीड कहते हैं। अब फिर से मैं थोड़ा उस सीड के बारे में यहां पे रिपीट कर रहा हूं, आपको तो याद ही होगा। देखिए, मैंने आपको याद हो तो ऐसे एक ग्राम सीड का फिगर बनाया था। ये सबसे ऊपर में माइक्रोपाइल था, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं ये बात। फिर से आप इसके नीचे एक स्कार था जिसको हम लोग हाइलम कहते थे, और इसके नीचे एक उभार एक जो था इसको हम लोग रैफे कहते थे। क्या कहते थे? रैफे। जो आउटर कवरिंग था ब्राउन कलर का, इसको हम सीड कोट कहते थे, और सीड कोट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, टेस्टा प्लस टेगमेंट। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका। इतना ही नहीं, मैंने इसको फोल्ड करके भी आपको ऐसे बताया था। मैं ये सब बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर देखिए, जो ये ऊपर वाला था इसको हम प्लीम्यूल कहते थे, ये जो नीचे था इसको हम रेडिकल कहते थे। बट एम्ब्रियो, यही एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल एक्सिस था, अपर टिप इज कॉल्ड प्लीम्यूल और लोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल, और इसको हम लोग कोटिलिडनरी नोड कहते थे। कोटिलिडनरी नोड कहते थे, ये वाला भाग याद करें तो इसको हम कोटिलिडनरी नोड कहते थे। यहां जो ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं इसको हम लोग इपिकोटाइल कहते थे। यहां जो मैं दिखा रहा हूं इसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहते थे, और ये क्या था भाई, तो कोटिलिडन्स। ठीक है, इतना बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से ये मैंने रिपीट किया है। और यहां आप ध्यान देंगे तो यहां पे रिजर्व फूड
कॉटिलिडन्स के रूप में है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सीड सबसे ज्यादा। तो ये फिगर भी आपको नोट्सबुक में बना लेनी है। ये ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि डाइकोटिलिडस सीड को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड मतलब इंडोस्पर्म उपस्थित होता है, एग्जांपल इज कास्टर, और वहां पर जो मेन बात याद रखना है कारंकल, दैट इज द थर्ड इंटेगमेंट ऑफ द ओवरी। नेक्स्ट नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, मोस्ट कॉमन टाइप ग्राम पी, ग्राउंडनट etc। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल, हाइलम, रैफे, ये इतनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब टर्म आपको याद होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मोनोकॉटिलिडनस सीड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है मोनोकॉटिलिडनस सीड। अभी मैंने बताया है, जैसे ही कोई कहे मोनोकॉटिलिडनस सीड माने वन कॉटिलिडन इज परसेंट। फिर दूसरा पैरामीटर लगाना है, दूसरा पैरामीटर ये लगाना है कि ये मोनोकॉट है, एक कॉटिलिडन उपस्थित है, तो क्या यहाँ पर इंडोस्पर्म उपस्थित है कि नहीं है। यानी मोनोकॉट को भी हमने दो भागों में अभी बांटा था, एक जहां इंडोस्पर्म उपस्थित था और दूसरा जहां इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं था। तो हम पहले वाले की चर्चा करते हैं। पहला जो था उसको हम कहते थे इंडोस्पर्मिक, मोनोकॉटिलिडनस सीड। या नाम फिर यहां इसके नाम से ही क्लियर है कि यहां पे इंडोस्पर्म इज परसेंट। ठीक है, मैंने ऐसे सीड में इंडोस्पर्म उपस्थित होगा, और दूसरा मोनोकॉटिलिडनस मतलब वन कॉटिलिडन इज परसेंट। ठीक है, दो बात याद रखना है। एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, और ये आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ये मेज के सीड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। तो मेज, अब इसके बारे में मैं फिर थोड़ा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, आपको बताया था अभी मैं, जैसे बाय द वे ये मान लीजिए ये मेज सीट है। जो मेज सीट होता है ये दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। ये जो बीच में एक इपिथेलियम का लेयर होता है, ये इपिथेलियम का लेयर होता है, इपिथेलियम का, जो इसको दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। ये जो बड़ा कंपार्टमेंट है, एक बड़ा कंपार्टमेंट होता है, एक छोटा कंपार्टमेंट होता है। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये छोटा कंपार्टमेंट में ही भ्रूण होता है। कहां होता है? यहीं पर ये भ्रूण होता है, लगभग ऐसा पोजीशन। और इसके ऊपर आपको याद हो तो ये जो इसका कॉटिलिडन्स होता है मोनोकॉट में, वो पेपरी होता है। कैसा होता है? पेपरी कॉटिलिडन पाए जाते हैं। और इस कॉटिलिडन को हम कॉटिलिडन माने कॉटिलिडन स्थान पर एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है जिसको हम अस्कुटेलम, क्या कहते हैं? अस्कुटेल। ठीक है, कॉटिलिडन ये पेपरी होता है, ये भोजन को स्टोर नहीं करता। नेक्स्ट, जो ये एम्ब्रियो होता है, इसके ऊपर यहां पे एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग कोलियोपोटाइड कहते हैं। ठीक है, और ये प्लीम्यूल हो गया, प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोपोटाइड। और उसी तरीके से जो ये रेडिकल होता है, ये रेडिकल भी कवर्ड होता है जिसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो का पोजीशन मोनोकॉट में ऐसा होता है। और जो इसका एंडोस्पर्म है वो दो फॉर्म में होता है, एक स्टार्च के फॉर्म में होता है, यहां एंडोस्पर्म, ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। और इसके ऊपर एक एंडोस्पर्म ही है, ये प्रोटीन का एक लेयर होता है।
एक प्रोटीन का एक लेयर होता है। ये भी इंडोस्पर्म है लेकिन प्रोटीनस नेचर का है। कैसा? प्रोटीनस नेचर का। इसके लिए स्पेशल एक टर्म है जिसको हम टेल्यूरॉन लेयर कहते हैं। ये कैसा होता है भाई? तो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो एक मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक सीड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। कहा है कि मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसके लिए स्पेशल टर्म स्पुटेलम यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इंडोस्पर्म उपस्थित है और एक कॉटिलिडन है, इसीलिए इसको हम इंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडन्स कहेंगे। एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो स्पुटेलम है ये फूड का स्टोरेज नहीं करता, लेकिन तो कहेंगे कि जब स्टोरेज नहीं करता तो इसको आप कॉटिलिडन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि जब यहां से इसका डाइजेशन होता है और ये डाइजेस्टेड फूड इसी स्पुटेलम के द्वारा इस भ्रूण को मिलता है, इस एम्ब्रियो को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, कोलियोपेटाइल प्लूम्यूला और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और उसी तरीके से यदि आप राइस को भी देखेंगे तो लगभग ऐसा ही पोजीशन होता है। आपने देखा हो तो राइस बाइबल ऐसा, और इसके बीच में ये राइट, इसके बीच में यहां पर मान लीजिए ये इपिथेलियल लेयर होता है। ठीक है, ये इपिथेलियल लेयर, इपिथेलियल है। ठीक है, और इसी के अंदर ये भ्रूण होता है, एकदम वैसे ये भ्रूण होता है और इसके ऊपर ये कॉटिलिडन, तो ये हो गया। और यहां पर ये स्टार्च होता है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना कौन कहां है। और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी एक फिगर दे रहा हूं और एनसीईआरटी में वो फिगर कुछ इस तरीके का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐसे स्पुटेलम दिखाया हुआ है, यहाँ ऐसे ऐसे करके एक फिगर बना हुआ है जो आपको वो रिपीट करके यहाँ पे वहां दिखाया हुआ है कि भाई इधर कोलियोपेटाइल है और इधर कोलियोनाइज है। उस फिगर को भी आपको नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, तो फिर से इंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडन सीड किसको कहेंगे? जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा और एक कॉटिलिडन प्रेजेंट रहेगा। ये पोजीशन कैसा है, ये पोजीशन का आपको याद रखना है और नोटबुक में ये फिगर बना लेना है और ये फिगर बना लेना जो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, जो दूसरा मोनोकॉटिलिडन सीड का दूसरा टाइप है, इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलिडन सीड। फिर यहाँ नाम से यह स्पष्ट है कि इंडोस्पर्म इज एब्सेंट देयर, इंडोस्पर्म इज एब्सेंट। पहली बात। दूसरा मोनोकॉटिलिडन सीड है मींस वन कॉटिलिडन इज परसेंट, इज परसेंट। और एग्जाम्पल में आपने तो देखा ना होगा, ये ऑर्किड को लेते हैं। जो ये ऑर्किड का जो सीड होता है, ये जो ऑर्किड का सीड होता है, इसमें देखिए बाय द वे ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है और यहां पर ये पेपरी स्पुटेलम है। मान लीजिए ये भ्रूण है, ये बाकी बात सब प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोपेटाइल, कोलियोराइजा सब वही रहेगा। तो ये क्या है? एम्ब्रियो है और ये क्या है? वो स्पुटेलम है, ऐसा कॉटिलिडन जो पेपरी, और यहां पर कोई इंडोस्पर्म नहीं होता। इसीलिए देखिएगा कि जो ये ऑर्किड का जिस भी जो सीड होता है, इंडोस्पर्म यहां पर नहीं है, तो ये सीड की वायबिलिटी, जर्मिनेशन पावर काफी कम दिनों का होता है, ये काफी कम दिन सरवाइव कर सकता है। इसलिए जब आप ऑर्किड का फूल देखिएगा स्टेज वगैरह में लगाया जाता है, ये काफी महंगा होता है। इसको आप टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू, उसके द्वारा इसको बचाया जाता है। तो ये काफी कम समय तक इसकी अंकुरण क्षमता होती है, वायबिलिटी होती है। आगे मैं चर्चा कर रहा हूं कि वायबिलिटी क्या है। तो आपको उदाहरण याद रखना है ऑर्किड को,
कि यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, जिसके कारण इसकी वायबिलिटी बहुत कम होती है। तो ओवरऑल इस सीड में आपको सबका बस एग्जाम्पल याद रखना है और कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब बस दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपको याद रखना है। पहला फैक्ट है कि भाई ये सीड का इंपॉर्टेंस क्या है, सीड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, और दूसरा वायबिलिटी ऑफ द सीड जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। वायबिलिटी कहते हैं कि अब कितने दिन तक उसमें जर्मिनेशन का पावर होता है, कितने दिन तक वो नया पादप प्लांट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो दो पॉइंट हम लोगों को याद और डिस्कस करना है। तो शुरू करते। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ सीड, सीड का फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो सीड का सबसे बड़ा फायदा है कि इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट। क्या करता है, इसी से नया प्लांट पैदा होता है। तो इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर सीड नहीं होता तो नया प्लांट उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात है, आप लोग जानते हैं कि जो ये सीड अभी बना वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट का फ्यूजन होगा, और गैमेट का जब फ्यूजन होगा यानी दो अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले गैमेट आपस में मिलेंगे, और जब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर वाले गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो जो नया कॉम्बिनेशन बनता है वो उन दोनों से भिन्न होता है। ये वेरिएशन को प्रमोट करता है। किसको करता है, प्रमोट वेरिएशन, और ये जो वेरिएशंस है वो इवोल्यूशन ऑफ द सीड के वेराइटीज को प्रमोट करता है। यानी सीड है जो वेरिएशन को प्रमोट करता है और जिसके कारण हम लोग नई वैरायटी उत्पन्न करने में सक्षम। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा है कि सीड के अंदर अभी आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड उपस्थित होता है, और इस रिजर्व फूड के कारण सीड एम्ब्रियो को तब तक भोजन मुहैया कराता है, भोजन उपलब्ध कराता है जब तक कि उसमें फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती। यानी यदि सीड नहीं होता, भोजन उपलब्ध नहीं कराता, तो समझ लीजिए एम्ब्रियो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंस है। चौथा है कि ये डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट एरियाज। या आप देखते हैं कि सीड को, अब जैसे अभी हमको पीपल का या फिर बरगद का पेड़ अगर बाइक में मान लीजिए चाइना से लाना था तो उसको ढो करके लाना है तो बड़ा मुश्किल होता है। और सीड ऐसा सीड है, आप यहां से आप अपने रिलेटिव के यहाँ अमेरिका कहां भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसके सीड के अंदर कई ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जिसके कारण वो सीड को किसी नए एरिया में प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका कि ये डिस्पर्सन में मदद करता है। नेक्स्ट है वायबिलिटी ऑफ सीड। ये वायबिलिटी ऑफ सीड क्या है, तो सीड डिस्पर्सल के बाद सीड की अंकुरन क्षमता कितने दिनों तक कायम रहती है उसी को हम कहते हैं वायबिलिटी। ठीक है, तो वायबिलिटी, एक सीड कितने समय तक नए प्लांट्स को, कितने समय बाद तक वो नए प्लांट्स को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, यानी जर्मिनेट करने में सक्षम होता है। तो देखिए ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। किसी में काफी कम दिन का होता है और किसी में कई वर्षों तक होता है। यानी सीड की वायबिलिटी स्पीसीज बाय वैरी करती है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने नाम सुना होगा, कई बार इसका मैंने नाम लिया है, ऑक्सेलिस का। ये फ्यू डेज माने कुछ ही दिन तक इसकी वायबिलिटी रहती है। अभी मैं नाम ले रहा था ऑर्किड का, उसकी वायबिलिटी काफी कम दिन तक। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं
जिसकी वायबिलिटी काफी लंबी है। जैसे एक अभी हाल फिलहाल आर्कटिक टुंड्रा से मिला है, जिसको हम ल्यूपिन कहते हैं, पूरा नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस ये कहां, ये मिला है आर्कटिक टुंड्रा से। और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे हैं ये लगभग 10,000 ईयर 10,000 ईयर्स पुराना है। तो प्लांट्स का क्या नाम हुआ, ल्यूपिन, ये ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त हुआ है और ये अभी 10,000 वर्ष पुराना है, फिर भी इसमें सीड जर्मिनेशन की क्षमता है। तो वायबिलिटी काफी लंबी हो गई। या एक और मिले डेट पाम, आपने नाम सुना होगा खजूर का, कहते हैं फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। ठीक है, इसकी भी वायबिलिटी 2000 ईयर्स तक। ये भी डेड सी के पास से मिला है और इसकी ये 2000 वर्ष पुराना है, फिर भी इसमें वायबिलिटी है, माने अंकुरण क्षमता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सीड की वायबिलिटी स्पीसीज बाय अलग अलग होती है। कुछ स्पीसीज में, कुछ प्लांट्स में काफी कम होता है, जैसे ऑक्जेलिस हो गया, ऑर्किड हो गया, और उसी तरीके से कुछ में काफी ज्यादा होता है, जैसे ल्यूपिनस आर्कटिकस में जो आर्कटिक टुंड्रा से मिला है, 10,000 वर्ष पुराना है, फिर भी इसमें अंकुरण क्षमता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसी तरीके से खजूर डेट पाम, जिसको हम फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा कहते हैं, वो भी 2000 वर्ष पुराना है, ये डेड सी के पास मिला है और फिर भी इसमें अंकुरण क्षमता। तो ओवरऑल देखिए, जो अभी मैंने डिस्कस किया सीड से रिलेटेड जितनी बात थी आपको मैंने बता दी थी। आप किसी भी किताब से सीड को बनाएं, आपका क्वेश्चन बने। ठीक है, तो यहाँ सीड खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए, ये कास्टर का सीड है और जो ऊपर मैं कह रहा था कि इस पर पैचेज होता है, देखिए वो पैचेज है ऊपर से देखेंगे तो। और वो जिस अंकल की चर्चा कर रहा था, देखिए सीड में वो अंकल, बीच में वो एम्ब्रियो है और वो इंडोस्पर्म भरा हुआ है। ये इस फिगर को भी समझकर जो मैं समझाना चाह रहा था आपको बात समझ में आई होगी। ये देखिए नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड, जिसमें मैंने ग्राम का उदाहरण दिया था, जो मैं हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट और ये कोटिलीडन, प्लूमेउलिस की चर्चा मैं आपको पहले बताया था। ये वाला ये नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडनस सीड का उदाहरण है। आपको इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। जैसा दिख रहा है वो लाइन, उसी को हम ये देखिए, ये मोनोकोटिलेडनस इंडोस्पर्मिक सीड जो मेज में आपको समझा रहा था उसका फिगर है। आप इस फिगर को भी देख करके पूरे उस बात को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ स्कूटेलम कहते हैं, कोलियोपेटाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है। ठीक, ये देखिए मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस सीड के बीच के डिफरेंसेस को समझाया गया है। आप इस फिगर को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेज, कास्टर, बीन या ग्राम सीड के बारे में। और आप समझता हूँ Thank you.